तनख्वाहों में ताख़ीर पर सईदाबाद और मादन्नापेट इलाकों में जीएचएमसी के वर्कर्स ने काम का बाइकआउट किया। इन सैनिटेशन वर्कर्स ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि 2 दिन से वो काम पर आ रहे हैं, ताहम बायोमेट्रिक में उनको गैर हाजिर बताया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 2 माह से बायोमेट्रिक ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है। अहदेदारों की ताख़ीर और एजेंसी की लापरवाही से उनको मुश्किलात का सामना है। उन्होंने मजदूरों का इस्तेसाल करने का भी इल्ज़ाम लगाया। 9,000 వచ్చినాయి మాకు। మళ్ళీ ఈ మిషన్ ఖరాబ్ అయిందని అక్కడ మనం నాచారం కొండబోతుండు, ఆడ 8-10 రోజులు అవుతుంది, అది వస్తలేదు, ఫోటోలు దింపుతుండ్రు, అది జీతం రాలేదు, ఫోటోలు దింపితే జీతం రాదంట, ప్రతి ఒక్కసారి మాకు పని చేయమంటారు, కానీ జీతానికి కరెక్ట్ ఎవరు లేరు। మళ్ళీ మేము చేసే లాభం ఏముంది సార్? ఇక్కడ వర్షం వస్తే బురద నీళ్ళు, మళ్ళీ బురద గీకకపోతే మాకు కాంప్లైంట్లు, బురద గీకినా గీకలేదంటారు, ఈ జీతాలు లేవు, ఏమీ లేవు। ఇప్పుడు ఈ నెలలో కూడా వర్షం వచ్చిన రోజు లేదు, మళ్ళీ 5 రోజులు లేవు, ఈ 6 రోజుల జీతం కూడా కట్ చేస్తుంటారు। మేము ఏం తినాలి, ఏం బతకాలి, మా కిరాయి ఏంది, మా పిల్లల చదువు ఏంది? ఆఫీసర్లు చేయమంటారు సార్, మళ్ళీ మేము చేసే గ్యారంటీ లేదు, మళ్ళీ వాళ్ళు ఏదన్నా గ్యారంటీ ఇవ్వాలి కదా మాకు, మీరు చెయ్యండి, మేము గ్యారంటీ ఇస్తాము, మీకు పేమెంట్ వస్తాడు చేస్తామని చెప్పాలి కదా। ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కసారి వచ్చి మాకు పని చేయమంటారు, మేము చేసి లాభం ఏముంది? మా ప్రాబ్లం ఏంది ఇది? ఇంతకుముందు మాకు ఫోటోలు దించారు, మాకు జీతం వచ్చింది, ఇప్పుడు ఎందుకు వస్తలేదు సార్ మాకు? అది చెప్పేది ఉంటే ముందే చెప్పాలి। ఈ మిషన్లు పాతగా అయిపోయినాయి, కొత్త మిషన్లన్నీ ఇవ్వాలి కదా సార్ మాకు, అవి లేదు, ఇది లేదు, ఏది లేదు। మాకు సున్నం పెడితే మేమేం చేయాలి? మాకు ఇళ్ళకి వెళ్ళి బయటకు వెళ్ళగొడతట్టుండ్రు, కిరాయిలు కట్టక, స్కూల్లో పిల్లలకు స్కూళ్ళకి ఫీజు లేక, ఇప్పుడు మా పిల్లలకు ఎగ్జామ్ రాయలేదు, ఫీజు కట్టలేదని, మా బాధ ఏంది సార్ ఇది? सीपीआई लीडर नारायणा ने इल्ज़ाम लगाया कि रियासत में अराजियात पर कब्ज़ों के वाक़यात में रोज़ बरोज़ बतदरीज इजाफा होता जा रहा है। सेरीलिंगमपल्ली में आलैंड कंपनी पर एक रियल इस्टेट का कारोबार करने वाले की जानिब से कब्ज़ा किए जाने का उन्होंने इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने सीपीआई के कारकुनों के साथ मिलकर कंपनी का तफसीली तौर पर मुआयना किया। భూ కబ్జాదారులని అది కంట్రోల్ చేయకుండా పోతే లా అండ్ ఆర్డర్ ప్రాబ్లం వస్తుంది। లా అండ్ ఆర్డర్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి, వచ్చేది ఏంటంటే మళ్ళీ కార్మికులకు అన్యాయం జరుగుతుంది। భూ కబ్జాదారులు తప్పించుకుపోతారు, వాళ్ళు రాత్రులు వస్తారు, పగలు మాకు తెలియదని చేస్తారు, కానీ దీన్ని కాపాడాల్సిన అవసరం ఉంది। అందుకని కమ్యూనిస్ట్ పార్టీగా మేము కూడా ఒకవైపు కార్మికుల్ని కాపాడుకుంటూ, రెండో వైపు భూ కబ్జాదారుల్ని, ల్యాండ్ మాఫియాని అడ్డుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది। వాళ్ళకి న్యాయబద్ధంగా ఉంటే మాకు అభ్యంతరం లేదు। దురాక్రమణ పద్ధతి వివాదానికి వస్తే ఇంకా హైదరాబాద్లో ఇంకా ల్యాండ్ వాల్యూ పెరిగిపోయింది కాబట్టి ఇంకా ఆడబడితే అరాచకాలు జరుగుతాయి, కూటీలు జరుగుతాయి, హత్యలు జరుగుతాయి। ఇవన్నీ ఎవరు సృష్టిస్తారు? ఇవన్నీ ల్యాండ్ మాఫియా సృష్టిస్తుంది। దాన్ని కంట్రోల్ చేయమని అంటున్నాం। ఇప్పుడే మేము కలెక్టర్ కలిసాం, వివరాలు। गणेश फेस्टिवल के लिए 2 माह का वक्त है। धूलपेट इलाके में मूर्तियों की तैयारी का काम शुरू हो गया है, लेकिन पीओपी की मूर्तियों को तैयार न करने सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर मूर्तियों को तैयार करने वाले उलझन का शिकार हैं। उन्होंने कहा कि 2 साल कोविड के नज़र हो गए, गुज़िश्ता साल कारोबार नहीं हुआ है। धूलपेट में तकरीबन 5,000 कारीगर हैं। मिट्टी की मूर्ति बनाने पर उसके ट्रांसपोर्टेशन में मुश्किल पेश आएगी। उन्होंने कहा कि पीओपी से मूर्ति में मजबूती होती है। आलमी बॉक्सिंग चैंपियनशिप में शानदार मुजाहरा और गोल्ड मेडल के हुसूल के बाद निखत ज़रीन ने कहा है कि अब पेरिस ओलंपिक पर उनकी नज़रें हैं। निखत ज़रीन ने 52 किलोग्राम ज़ुमरे में बावकार गोल्ड मेडल हासिल किया था। वो आलमी चैंपियनशिप में खिताब हासिल करने वाली 5वीं हिंदुस्तानी बॉक्सर हैं। उन्होंने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और नेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन की जानिब से मुनक़िदा तहनीती तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि उन्हें खुशी है कि उन्होंने मुल्क के लिए आलमी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। मुस्तकबिल में भी वो मज़ीद मेहनत करेंगी और हिंदुस्तान के लिए तमगे जीतेंगी। निखत ने कहा कि ओलंपिक उनका मकसद है जिसमें कामयाबी हासिल करना वो चाहती हैं। उन्हें इसके लिए दुगनी कोशिश करनी पड़ेगी। अब उन पर मज़ीद जिम्मेदारी है। इस तकरीब में वज़ीर स्पोर्ट्स अनुराग ठाकुर ने भी शिरकत की। నేను వరల్డ్ ఛాంపియన్షిప్లో గోల్డ్ గెలిచిన తర్వాత చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతున్నాను।
అండ్ మన భారతదేశం కోసం మన తెలంగాణ కోసం నేను వరల్డ్ ఛాంపియన్షిప్లో గోల్డ్ గెలిచి చాలా ప్రౌడ్ ఫీల్ అవుతున్నాను. ఇలాగే హార్డ్ వర్క్ చేసి ఫ్యూచర్లో కూడా ఒలింపిక్లో మెడల్ సాధించాలని కోరుకుంటున్నాను. కరెంట్లీ రేపటి నుంచి నేను ట్రైనింగ్ స్టార్ట్ చేస్తా. బికాజ్ మా కామన్వెల్త్ ట్రయల్స్ వస్తున్నాయి, దాంట్లో సెలెక్ట్ అవ్వి మన కామన్వెల్త్లో కూడా గోల్డ్ గెలవాలని కోరుకుంటున్నాను. నేను స్టేట్ గవర్నమెంట్ నాకు 2014లో సన్మానించారు మన కేసీఆర్ గారు 50 lakhsతో. డెఫినెట్లీ సపోర్ట్ నాకు ఇచ్చారు అందరూ. నేను డెఫినెట్లీ ఇంకా మంచి హార్డ్ వర్క్ చేసి నేను మన భారతదేశం కోసం మెడల్ తెస్తాను. నేను कोनासीमा जिले के नाम की तब्दीली के खिलाफ सैकड़ों नौजवानों ने अमलापुरम में एहतजाज किया, जिसके नतीजे में कशीदगी फैल गई और पुलिस ने लाठीचार्ज करते हुए उनको मुंतशिर कर दिया। तशद्दुद के दौरान वजीर ट्रांसपोर्ट विश्वरूप का मकान जला दिया गया। वजीर और उनके ख़ानदान को पुलिस ने बाहिफाजत मकान से बाहर निकाल लिया। पुलिस की एक गाड़ी और तालीमी इदारे की एक बस को भी नजर आतिश कर दिया गया। एहतजाजियों की संगबारी के नतीजे में कई मुलाजमीन पुलिस जख्मी हो गए। वज़ीर दाखिला ने बताया कि ये इंतहाई अफसोस की बात है कि इस वाक़े में 20 मुलाजमीन पुलिस जख्मी हुए हैं और हम इस पूरे मामले की तहकीकात करवाते हुए कातिलों के खिलाफ मुकदमात दर्ज करेंगे। गुज़िश्ता हफ्ते ही रियासती हुकूमत ने एक इब्तदाई अलामिया जारी करते हुए ज़िला कोनासीमा का नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर कोनासीमा डिस्ट्रिक्ट रखा और आवाम से एतराज़ात तलब किए थे। कोनासीमा ज़िला साधना समिति के बैनर तले ये नौजवान क्लॉक टावर जंक्शन के पास जमा हो गए और नारेबाजी शुरू कर दी। इत्तला के साथ ही पुलिस वहां पहुंच गई। रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मौज़म खान के हाथों बहादुरपुरा में हिदाया इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल की चौथी ब्रांच का इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर स्कूल के डायरेक्टर ने कहा कि स्कूल में इस्लामी तालीम के साथ साथ मुकम्मल असरी तालीम का बंदोबस्त किया गया है। स्कूल में हिफ्ज़ का भी नज़म है। उन्होंने कहा कि ज़ायद निसाब सरगर्मियों खेलकूद पर भी तवज्जो रहेगी। बच्चों की हमागिर शख्सियत साजी पर भी स्कूल की जानिब से तवज्जो दी जा रही है। उन्होंने वालिदैन से ख्वाहिश की कि वो एक मरतबा स्कूल का दौरा करें। उन्होंने ज़ोर देते हुए कहा कि वालिदैन से भी बेहतर रद्द-ए-अमल हासिल हो रहा है। उन्होंने वालिदैन से ख्वाहिश की कि वो स्कूल का मुआयना करें और वहाँ मौजूद काउंसलर से बात करने के बाद इत्मीनान पर ही अपने बच्चों को इस स्कूल में दाखिला दिलाएं। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन वला आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। आज का दिन 24 मई मंगल का दिन हिदाया इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल बहादुरपुरे में इफ्तिताह अमल में आया। अल्हम्दुलिल्लाह पेरेंट्स की गुजारिशों की वजह से, पेरेंट्स की इसरार की वजह से यहाँ पर स्कूल खोला गया। अल्हम्दुलिल्लाह 2009 से हम इस फील्ड में काम कर रहे हैं, तो हमारा मोटो कुछ अलग है, दूसरे स्कूलों से हटके है। तो मेरे पास एकेडमिक के साथ साथ पुरानी तालीम भी है और इस्लामिक स्टडीज़ भी है और अरबिक लैंग्वेज भी है। इसके साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी है। तो इंशाअल्लाह दूसरे स्कूलों की तरह हमारा स्कूल नहीं है। हमारे पास हमारी कम्युनिटी को, हमारे स्टेट को, हमारे नेशन को डेवलप करने के लिए इंशाअल्लाह दो बेड़ा लेके उठे हैं। इंशाअल्लाह इसको बरकरार रखेंगे, इसको कायम रखेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। इंशाअल्लाह ये काम चलते रहेगा तो हर घर में कुरान पहुँचेगा, हर घर में इस्लामिक स्टडीज़ पहुँचेगी और हर घर में अरबिक लैंग्वेज पहुँचेगी और हर घर में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का कॉम्पिटेंट बच्चों को बनाएंगे। और जैसे कि नीट, JEE मेंस और MSET और चार्टर्ड अकाउंटेंट के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है हमारे पास, उसकी कोचिंग भी हो रही। हमारे बच्चों को फाउंडेशन का कोर्स भी उसका कराया जा रहा। तो ये साल इंशाअल्लाह हमको उम्मीद है कि कॉलेज में हमारे बच्चे शायद ये साल नीट में और JEE मेंस में क्रैक करने वाले हैं और इंशाअल्लाह इंटरमीडिएट में भी क्रैक होने वाला है स्टेट रैंक। या फर्स्ट नहीं, सेकंड, थर्ड तो इंशाअल्लाह पूरी उम्मीद है कि हमारा कोई स्टेट रैंक आएगा। तो इंशाअल्लाह हम इसको लेके चलेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे और आगे हमारा मिशन जारी रहेगा। और पहले सिटी में कंप्लीट करना चाह रहे, कम से कम एक मुशीराबाद में एक ब्रांच और होगा और एक टोली चौकी में होगा और एक ब्रांच यहाँ होने के बाद फिर
हैदराबाद से बाहर हमारा जाने का इरादा है। तो इंशाअल्लाह इसको स्टेबलाइज करने के बाद हम काम आगे भी लेके चलेंगे। व आखिरुद दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सौती आलूगी को रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस इक़दामात कर रही है। कई गाड़ी सवारों की जानिब से मर्ज़ी के मुताबिक नए नए हॉर्न्स लगाए जा रहे हैं, जिस पर पुलिस की जानिब से ऐसी गाड़ियों पर नज़र रखी जा रही है। सौती आलूगी फैलाने पर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से इनको रोकने की मसाई की जा रही है। ऐसी गाड़ियों के सवारों के ख़िलाफ़ मुक़दमा दर्ज करके भारी जुर्माने आयद किए जा रहे हैं। हैदराबाद में जारिया साल के वस्त में सौती आलूदगी में बड़े पैमाने पर इजाफा हो गया है। पुलिस की जानिब से इस सिलसिले में खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है। पुलिस ने 24 मई की शाम से 26 मई की सुबह 8 बजे तक मलाली, मैंगलोर, कर्नाटक में वाक़ जामे मस्जिद के इर्द गिर्द 500 मीटर के इलाके में दिफा 144 नाफिज कर दी है। इसके साथ ही पुलिस ने मस्जिद के करीब बड़ी तादाद में पुलिस अहलकार तैनात कर दिए हैं। मुबीना तौर पर 21 अप्रैल को मस्जिद के नीचे एक हिंदू मंदिर जैसा आर्किटेक्चरल डिज़ाइन मिला था। इसके बाद विश्व हिंदू परिषद के लीडर ने ज़िला इंतज़ामिया से अपील की और मुतालिबा किया कि मस्जिद के दस्तावेज़ात की तस्दीक होने तक मस्जिद की बहाली का काम रोक दिया जाए। वाराणसी भगवान शिव के शहर काशी के मशहूर ज्ञानवापी केस पर वाराणसी के ज़िले अदालत में जारी समाअत के दरमियान काशी के संत ने इबादत गाहों के क़ानून को प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। अखिल भारतीय संत समिति के जनरल सेक्रेटरी जितेंद्र आनंद सरस्वती ने अपनी दरख्वास्त में इस अमल को मजहबी आज़ादी की बुनियादी हक़ के ख़िलाफ़ वर्जी बताया है। इस कानून और इसकी दिफात को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते हुए उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इस कानून की आड़ में सनातन सक़ाफ़त और तहज़ीब को तबाह किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अहम अपोजिशन पार्टी समाजवादी के सीनियर लीडर आज़म खां की पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव से रिश्तों में कशीदगी की क़यास-आरियां बदस्तूर जारी हैं। इस दरमियान संभल में शिया मजहबी रहनुमा मौलाना जवाद ने नया शगुफा छोड़ दिया है। शिया मजहबी रहनुमा ने दावा किया है कि आज़म खां और जितेंद्र त्यागी मिलकर नई पार्टी बनाएंगे। संभल के कस्बे सरसी में मुनक़िदा एक शिया मजलिस में शामिल होने के बाद मौलाना जवाद ने कहा कि आज़म खां और जितेंद्र सिंह त्यागी एक साथ जेल से छूट कर आए हैं। अब दोनों मिलकर एक नई पार्टी बनाएंगे। उत्तर प्रदेश की कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज प्रियंका गांधी वड्रा ने कहा है कि हुकूमत रियासतों के लिए गेहूं का कोटा कम करके गरीबों से रोटियां छीनने का काम कर रही है। मोहतरमा प्रियंका गांधी वड्रा ने कहा कि सारी कटौतियां सिर्फ गरीबों के लिए ही क्यों। भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत ने आटा महंगा करके गरीबों की पहुंच से दूर कर दिया और अब गरीबों का गंदम राशन के थैले से भी छीनने की तैयारी कर रही है। चंद दिन पहले तक पूरी दुनिया का पेट भरने का दावा किया जाता था और अब हुकूमत सिर्फ मुल्क के अवाम के लिए गंदम का कोटा क्यों कम कर रही है। शुमाली कश्मीर के बारामूला के करेरी इलाके में बुध को सिक्योरिटी फोर्सेस और जंगजुओं के दरमियान तसादुम में 3 पाकिस्तानी जंगजू और एक पुलिस अहलकार हलाक हो गए। कश्मीर जोन पुलिस ने इंस्पेक्टर जनरल विजय कुमार के हवाले से एक ट्वीट में कहा, बारामूला इनकाउंटर अपडेट में 3 पाकिस्तानी दहशतगर्द हलाक जबकि जम्मू व कश्मीर पुलिस का एक अहलकार भी शहीद हो गया। उन्होंने कहा कि जाए तसादम आराई से काबिल एतराज़ मवाद के अलावा असलाह व गोला बारूद भी बरामद किया गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जुमेरात 26 मई को मुख्तसर से दौरे पर हैदराबाद पहुंचेंगे। वो दोपहर 1:30 बजे अपनी आमद के फौरी बाद हेलीकॉप्टर के जरिए गच्चीबोली जाएंगे, जहां इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस की 20वीं सालगिरह तकरीब मुनक़िद हो रही है। इस प्रोग्राम में शिरकत के बाद वज़ीर-ए-आज़म शाम 4 बजे चेन्नई के लिए रवाना होंगे। राज्यसभा की 2 नशिस्तों के लिए 10 जून को होने वाले चुनाव के सिलसिले में टीआरएस के उम्मीदवारों डी दामोदर राव, मैनेजिंग डायरेक्टर नमस्ते तेलंगाना और हिथ्रो फार्मास्यूटिकल कंपनी के सीईओ बी पार्था सारथी रेड्डी ने चारशंबे को अपने पर्चे दाखिल किए। रियासती वज़रा हरीश राव, वी प्रशांत रेड्डी, सबिता रेड्डी, टी श्रीनिवास यादव, जी कमलाकर, मल्ला रेड्डी के अलावा टीआरएस के अरकान पार्लियामेंट और असम्बली भी उनके हमरा थे। राज्यसभा के मौजूदा अरकान
कैप्टन वी लक्ष्मीकांत और डी श्रीनिवास के हंगामा सबोदोष होने की वजह से यह नशिस्तें मखलूआ हो रही हैं। वाज़ेह रहे कि राज्यसभा की एक नशिस्त के लिए ज़िमनी चुनाव में वी रविचंद्रन का बिला मुकाबला इंतखाब अमल में आ चुका है। हज साल 2022 के आज़मीन को अपनी रवानगी से 72 घंटे कबल RT-PCR टेस्ट करवाना होगा। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इरफान शरीफ ने मस्जिद दारुल इरफान रेडिल्स में रियासती हज कमेटी के तीसरे हज कैंप से खिताब के दौरान ये बात बताई। उन्होंने वेटिंग लिस्ट में शामिल 553 आज़मीन से अपने पासपोर्ट, कोविड-19 वैक्सीन के दोनों डोजेस के सर्टिफिकेट्स हज कमेटी में जमा करने की दरख्वास्त की। इस हज कैंप से मौलाना मुफ्ती सैयद अमजद अली खासमी, मौलाना उबैदुर रहमान अतर, इमाम व खतीब मस्जिद कुतुब शाही टीन पोश मौलाना मोहम्मद मुजम्मिल जुनैदी ने भी खिताब किया। प्रदेश कांग्रेस के साबिक सदर पूर्णालाल लक्ष्मैया ने कहा कि मरकजी और रियासती हुकूमतों की पॉलिसी की वजह से रियासत के किसानों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। गांधी भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी किसानों के मसाइल को उठाएगी और उसे आवाम से रुजू करेगी। उन्होंने कहा कि धान की खरीदी के मराकज़ पर अनाज को खुश करने की मशीनें नाकारा हो गई हैं, धान में बू जा रहा है। पूर्णालाल लक्ष्मैया ने कहा कि रियासती हुकूमत किसानों को धान के ज़ख़ीरे के लिए थैले फराहम करने भी नाकाम हो गई है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव अपनी रियासत के किसानों के मसाइल को नज़रअंदाज करते हुए पंजाब और हरियाणा के किसानों के खानदानों में एक्स ग्रेशिया तकसीम कर रहे हैं। మరోసారి కాంగ్రెస్ పార్టీ ముందుకు వచ్చి ప్రభుత్వ వైఫల్యాలను ముందు పెడుతూ ప్రత్యామ్నాయంగా గతంలో చేసిన విధంగా ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో మరి కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం ఏర్పడ్డ తర్వాత రైతులకు ఏ విధమైన సహాయ సహకారాలు అందించాలనే దాని మీద ఒక సమగ్రమైన ప్రకటన చేసిన విషయం మీకు తెలుసు, ప్రజలకు తెలుసు, రైతులకు తెలుసు. ఈ నేపథ్యంలో ఈ ఓరుగల్లు ప్రకటనతో రైతులు ప్రజల దగ్గరికి మరొకసారి ఈ సమయంలో పోవడం మంచిది. కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల వైఫల్యాలను ఎండగట్టడం అత్యంత అవసరమనే విధానంతో కాంగ్రెస్ పార్టీ ముందుకు వచ్చింది. దురదృష్టం నేతలు మాట్లాడుతున్నారు, ఇక్కడ కేసీఆర్, అక్కడ ఎవరు మోడీ గారు 20 రోజుల నుంచి 30 రోజుల నుంచి 15 రోజుల నుంచి కొనుగోలు కేంద్రాలలో రైతులు దీనావస్థలో ఉండి ఎండల్లో 37-38 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత లోపట తమ వడ్లను కాపాడుకోవడానికి అధికారులు కానీ సివిల్ సప్లైస్ కార్పొరేషన్ కానీ చెప్తున్న విధానాలకు మాటలకు తలవొగ్గే విధంగా పడిగాపులు కాసేటువంటి పరిస్థితులు వస్తున్న నేపథ్యంలో ఒకటి రెండు విషయాలు ప్రజల దృష్టికి, మీడియా దృష్టికి తీసుకురావడానికి నేను ప్రయత్నం చేస్తాను. అయ్యా, ఇది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కొనుగోలు కేంద్రాల వద్ద రైతులకు సమాచారం పెడుతున్నది ఫ్లెక్సీల ద్వారా, చాలా పెద్దగా. बाएं बाजू की जमातें महंगाई, सरकारी मुखला जायदादों को पुर करने और गरीबों को डबल बेडरूम मकानात अलाट करने का मुतालबा करते हुए 28 मई को इंदिरा पार्क पर एक बड़ा एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म करेंगी। बाएं बाजू की जमातों के कायदीन वेंकटेश्वर राव, गोवर्धन और सिंधिया ने कहा कि रियासत तेलंगाना के क़याम के 8 साल के बाद भी आवाम के मसाइब और तकालीफ में कोई कमी नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि 40 लाख अफराद बेरोजगार हैं और हुकूमत तकरीबन 1 लाख जायदादों को पुर कर रही है। इस पर तुर्रा यह है कि हुकूमत इस मामले में बड़े बड़े दावे कर रही है। 28వ తేదీన సిపిఎంఎల్ మూడమర్కసి ఆధ్వర్యంలో ధర్నా జరగబోతుంది. ఆ ధర్నాలో ప్రధానంగా ఆదివాసీల సమస్య, భూమి సమస్య, వాళ్ళు ఎన్నో సంవత్సరాలు దున్నుకుంటున్న, వృత్తి కోసం దున్నుకుంటున్న భూమి సమస్యని పరిష్కారం చేయకపోగా అనేక వాగ్దానాలు చేసిన ముఖ్యమంత్రి గారు తెలంగాణ కంటే ముందు చేసిండు, తర్వాత చేసిండు. చట్టాలన్నింటినీ అతిక్రమిస్తూ అక్కడ ఫారెస్ట్ అధికారులు, పోలీసులు దౌర్జన్యం చేస్తున్నారు. మా భూమి మాకు ఇవ్వండి, మా వృత్తి మాకు ఇవ్వండి అని వాళ్ళు హైదరాబాద్ దాకా తరలి వస్తున్నారు. ఈ సమస్యే కాకుండా మిగతా సమస్యలన్నీ కూడా అనేక వాగ్దానాలు చేసిన ప్రభుత్వం నిరుద్యోగ సమస్య అలానే ఉంది, ఆరోగ్య సమస్య అలానే ఉంది, విద్యా వైద్య సమస్యలన్నింటినీ కూడా పరిష్కారం కాకపోగా చాలా అన్యాయమైన పరిస్థితి ఉంది. వీటన్నింటినీ ప్రజలందరి దృష్టికి తీసుకొచ్చి ఈ సమస్యల పరిష్కారం కోసం జరిగే ఈ ధర్నాన్ని జయప్రదం చేయాలని సిపిఎంఎల్ కూడా तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर सीवी सजना ने कहा कि आरटीसी को गुज़श्ता साल
2200 करोड़ रुपए का खसारा हुआ है। इसके बावजूद हुकूमत उसे फायदेमंद इदारे में तब्दील करने के लिए कोशां है। एबिट्स में स्माइलिंग स्टार्स प्ले स्कूल का इफ्तिताह करने के बाद उन्होंने कहा कि कोविड-19 के हालात, डीजल की कीमतों में बेतहाशा इजाफा आरटीसी के नुकसान में जाने के असबाब हैं। उन्होंने बताया कि आरटीसी की कार्गो और हॉस्पिटल सर्विस को मजीद बेहतर बनाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। చాలా నష్టాల్లో పడింది। ముఖ్యంగా కోవిడ్లో కావచ్చు, డీజిల్ రేట్ పెరగడం వల్ల ప్లస్ అదేవిధంగా మధ్యలో జరిగిన కొన్ని పరిణామం వల్ల మనకు చాలా ఇబ్బంది అయింది। గత సంవత్సరం దాదాపు 2200 కోటి నష్టము మనకు కావడం జరిగింది। సో దాని దృష్టిలో పెట్టుకొని మనము మన రూట్ రేషనలైజేషన్స్ కావచ్చు, అదేవిధంగా మన కార్గో సర్వీస్ ఇంప్రూవ్ కావచ్చు, మన హాస్పిటల్ సర్వీస్ని ఇంప్రూవ్ చేయడం కూడా మనము ప్రయత్నం చేయడం జరుగుతుంది। మనము కొత్త బస్సెస్ వస్తే మనకు డెఫినెట్లీ మంచి ఉంటుంది। దాని దిశలో మనం టెండర్ కూడా పిలవడం జరిగింది। ఎలక్ట్రికల్ వెహికల్ బస్సెస్ కూడా తీసుకోవడం జరుగుతుంది। డెఫినెట్లీ వచ్చే రోజు ఈ యొక్క పోయిన నష్టం కూడా మనం అధిగమించుతూ మళ్ళీ మన లాభాలని తీసుకోవడానికి యాజమాన్యం కూడా కృషి చేయడం జరిగింది। స్కూల్ని ఒక యూజ్ చేసుకోవాలని చెప్పి నేను మరీ కోరుతున్నాను। जिले हददरी भोंगीर में तासीस तेलंगाना के तकालीफ के शानदार पैमाने पर इनेकाद की जिला कलेक्टर पामिला सतपथी ने हिदायत जारी की है। जिला अहदेदारों के साथ एक इजलास में उन्होंने आवाम की फलाह बहबूद के लिए हुकूमत की शुरू करदा स्कीमों की खूब तशहीर करने की ज़रूरत पर जोर दिया और कहा कि इस अहम दिन दवाखानों में शरीक मरीजों में मुआवजात तकसीम अमल में लाए जाएँ। हर जगह हेल्थ कैंप भी मुनक़िद किए जाएँ। पामिला सतपथी ने पुलिस परेड ग्राउंड पर परेड के लिए खुसूसी इंतजाम करने की डिप्टी कमिश्नर पुलिस नारायण रेड्डी को हिदायत भी दी। इजलास में एडिशनल कलेक्टर दीपक तिवारी, आरडीओ भोपाल रेड्डी, डीआरडीओ रविंद्र रेड्डी और दूसरे भी शरीक थे। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद अली ने सीपीएल अंबरपेट में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के पेट्रोल पंप का इफ्तिताह किया। इस मौके पर डीजीपी एम महेंद्र रेड्डी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और पुलिस के दीगर अहदेदार भी मौजूद थे। अंबरपेट में जो है जो एसआर सीपीएल अंबरपेट का पेट्रोल पंप का जो इनाग्रेशन किया गया है, इसकी वजह से राचाकुंडा के जितने व्हीकल्स हैं, क्योंकि तेलंगाना बनने के बाद हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने ख़ास तौर से पुलिस पर ख़ास तवज्जो दी। आज हमारी जो पुलिस है इंडिया में नंबर 1 पुलिस की तरह काम कर रही है और पुलिस के व्हीकल्स कंटिन्यू पेट्रोलिंग करते रहते हैं। इससे यहाँ के लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। यहाँ के गाड़ियों के लिए बहुत करीब यहाँ पर पेट्रोल पंप नहीं था, थोड़ा दूर जाकर लेना पड़ता था। इससे पहले हम ऑलरेडी 3 पेट्रोल पंप्स काम कर रहे हैं, ये 14 पेट्रोल पंप है। इससे यहाँ के जो भी राचाकुंडे के जितने गाड़ियाँ पेट्रोलिंग करते हैं, यहाँ जितने व्हीकल्स हैं, इन तमाम को बहुत नज़दीक होगा, जिससे बहुत अच्छा होगा। खासतौर से पेट्रोल पंप के लिए हमारे डीजीपी साहब जो महेंद्र रेड्डी साहब और हमारे डीजी फायर जो है संजय कुमार जैन के साहब और हमारे पेट्रोल पंप हुआ खासतौर से इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के आजीज साहब और तमाम ऑफिसरों को मैं मुबारकबाद देता हूँ। इससे बहुत अच्छा हमारे जो व्हीकल्स है वो बहुत कम वक्त में आके यहाँ से पेट्रोल लेके जा सकते हैं और हमारे सीएम साहब यही चाहते हैं कि हमारे गाड़ियाँ हमेशा घूमते रहें। मैं समझता हूँ इंडिया में अगर कहीं कोई स्टेट है वो तेलंगाना स्टेट है, जहाँ पर पुलिस मुसलसिल व्हीकल्स पेट्रोलिंग करते रहते हैं। और जब भी आप 100 डायल करते हैं तो कई हमारे मीडिया फ्रेंड्स भी जो है प्रैक्टिकली 100 डायल कर दिखाती है लोगों को कि हमारी पुलिस 5 से 6 मिनट के अंदर वहाँ पहुँच जाती है, जिससे उनको जो भी डर खौफ होता है, कभी किसी जगह हरासमेंट होता है, अगर 100 डायल करेंगे तो 2-4 मिनट देखे तक गुजर जाते हैं जब तक पुलिस आ जाती है। इसके लिए हमारी पुलिस के तमाम अहदेदारों को मुबारकबाद देता हूँ। तो हमेशा पुलिस डिपार्टमेंट को जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होना चाहिए उसके लिए जो भी ज़रूरत है उसे पूरा करते हैं। तो इस पेट्रोल पंप से यहाँ के तकरीबन अतराफ की जो गाड़ी है 1/4 गाड़ियों को जो है इससे फ़ायदा पहुँचेगा, तो पेट्रोल बहुत जल्दी मिल जाएगा और खरीद मिल जाएगा। थैंक यू। बेगम बाजार में 3 दिन कबल बैन तबकाती शादी पर मारवाड़ी समाज के एक नौजवान नीरज पवार की बेहमाना कत्ल की वारदात पर शदीद एहतजाज करते हुए मारवाड़ी समाज के कायदीन और नीरज पवार के अरकान ख़ानदान ने वज़ीर दाखिला मोहम्मद अली से मुलाकात की। उन्हें एक याददाश्त पेश करते हुए इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाने और नीरज की बेवा को सरकारी मुलाजमत फराहम करने का भी मुतालबा किया गया। हम करेंगे बोल रहे हैं, मेरे बच्चे को न्याय होना, फास्ट ट्रैक में डालो इसको, और जब तक कुछ भी नहीं हुआ तब तक उनको बेल नहीं होना। उन लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं और हमको अभी भी धमकी आ रही कि आप लोग बाहर निकले तो हम लोग नहीं छोड़ेंगे। अभी उनके फैमिली वाले देंगे, और कौन देंगे सर? धमकी दिए नहीं है आपको, आई बोले ना धमकी जी, तो कौन दिए धमकी? आपको फोन करे होंगे या किसी से बोल भी जाए? किसके बोल के भी जाए तो उनका नाम मैं ओपन नहीं कर सकती ना सर। हाँ।
जो हमारे को बोला इसका नाम हम डिक्लेयर कर दिए तो इसको मार डालते हैं। कौन जवाबदार है इसका? हाँ, कंप्लेंट फिर आज साइनाथगंज अफजलगंज देंगे हम कंप्लेंट, और फिर हमारा केसेस साइनाथगंज अफजलगंज से निकाल के कमिश्नर ऑफिस को DSP को दीजिए वो केस। दोनों दिन मिनिस्टर के तरफ से आपको कुछ यकीन दिए? फिर यार कमिश्नर साहब के पास अभी हम जा रहे हैं। हमको यकीन हम करेंगे बोल के बोले, मेरे को यही है मेरा काम होना, मैं इसीलिए यहाँ पे आई, मैं कुछ उम्मीद के साथ आई यहाँ पे। और ये 2 महीने का बच्चा है, ये कुछ भी नहीं देखा अभी, इसकी लाइफ कैसा निकलना, आज मेरी बच्ची की लाइफ कैसा निकलना। आज ये बच्ची की लाइफ क्या हो गया? हाँ मेरी बच्ची की लाइफ कैसा निकलना, जब अगली की माँ और बहन अगले के फैमिली वाले बोले कि अगली ससुराल में खुश है, फिर उनको क्या तकलीफ हुई, समाज जाति पाति इसको बोलते क्या। आज मैं अपना ही मेरे बच्चे के साथ इसको, तो तुमको क्या प्रॉब्लम हुई तुम्हारी बेटी के साथ इतना अन्याय करने के लिए। आज जो बच्चे उनको मारे ना, उनके घर में खाने के लिए भी नहीं है, उनके आगे है कौन जो इनको कतारें लेके खड़ा करने वाला है कौन, मेरे को ये मालूम करके सर, और उनको जल्दी से जल्दी पकड़ के सामने लाइए। और मेरे बेटे को फास्ट ट्रैक में डाल के, ये कोई 6 महीने साल भर ये आगे जाने का केस नहीं है, मेरे को 40 डेज के अंदर इसका रिजल्ट होना, ऐसा नहीं सुने करे हो गया। और अब सबका सपोर्ट मेरे बच्चे को होना, आज मेरे बच्चे के साथ हुआ, कल आपके कोई के बच्चे के साथ नहीं होना। इंसाफ मांगने यहाँ पे आई मैं चाहती तो मैं भी कुछ भी कर सकती थी, लेकिन मेरे को नहीं, जस्टिस होना मेरे को, मेरी बच्ची और मेरे बच्चे का बस न्याय मिलना। इनके साथ बहुत बुरा हुआ, अब आगे इनकी लाइफ निकलना बोल तो क्या करना। मैं यहाँ पे खड़ी होकर होम मिनिस्टर साहब से विनती करके पूछ रही कि इनके लिए आगे क्या आप सोचे, ये हमारे सामने लाइए, क्योंकि मेरी बच्ची के लाइफ के लिए भी कुछ होना, बराबर होना। क्या चाहिए क्या? गगन पहाड़ जिले रंगारेड्डी के फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर श्याम कुमार और सेक्शन ऑफिसर प्रिया नायक को एक ताजिर से 80,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया। एंटी करप्शन ब्यूरो के मुताबिक उप्पल के एक टिम्बर डिपो के मालिक वेंकटेश ने शमशाबाद में एक मिल कायम करने के लिए लाइसेंस की दरखास्त दी थी, जिसे मंजूर करने के लिए इन दोनों अहदेदारों ने रिश्वत का मुतालबा किया था। पुलिस की सी टीम ने एक बाइक टैक्सी ड्राइवर विजय कुमार को कॉलेज जाने वाली लड़कियों को हिरासत करने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक विजय कुमार कॉलेज जाने वाली लड़कियों को रैपिडो बाइक के जरिए ले जाया और लाया करता था, और उसने उनके फ़ोन नंबर पर कॉल करके उनसे बातचीत करना भी शुरू कर दिया था। इसी दौरान उसने बाद लड़कियों को फैश तस्वीर भी रवाना की। उसकी हिरासनी का शिकार 8 लड़कियों ने सी टीम से शिकायत की थी। निजामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले 25 यात्री बिहार के ज़िले औरंगाबाद में मंगल की रात हुए हादसे में जख्मी हो गए, जबकि खातून की मौत हो गई है। बताया जाता है कि निजामाबाद के 38 यात्री एक खानगी बस के जरिए गया में बुद्धमत की मंदिर में हाजिरी के बाद वाराणसी जा रहे थे। मरने वाली खातून की शिनाख्त मौजे विलमिल की रहने वाली सरलम्मा की हैसियत से की गई है। हादसे के बाद ड्राइवर फरार हो गया है। पुलिस मसरूफ तहकीकात है। कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक मरकजी वजीर कपिल सिब्बल पार्टी से मुस्तफी हो गए हैं। वह उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए होने वाले चुनाव में बहसियत आज़ाद उम्मीदवार मुकाबला कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने कपिल सिब्बल की तायद का ऐलान किया है। वो साबिक चीफ मिनिस्टर और सदर समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव और रुकने पार्लियामेंट रामगोपाल यादव के हमरा अपना पर्चा भी दाखिल कर चुके हैं। गुजरात में पाटीदार समाज के लीडर हार्दिक पटेल ने कहा कि उनके लिए बीजेपी में शामिल होना एक ऑप्शन है, जबकि वो आम आदमी पार्टी को उसकी हिकमत अमली के एतबार से एक अच्छी पार्टी समझते हैं। उन्होंने गुजरात में आने वाले असेंबली चुनाव के बारे में कहा कि यहाँ माहौल एक तरफा हो चुका है, लेकिन वो 2017 के मुकाबले में इस साल अपना अच्छा किरदार निभाएंगे। हिंदुस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 2124 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि इसी मुद्दत में 17 नई अमवात हुई हैं। मरकजी वज़ारत सेहत ने बताया कि मुल्क भर में अब तक कोरोना वायरस से मुतासर होने वालों की जुमला तादाद 4,31,42,142 हो चुकी है। गुज़श्ता पिछले दिनों के मुकाबले में एक दिन में कोविड-19 के मुतासरीन की तादाद में 130 केसेस का इजाफा हुआ है।